Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Easy Economics, and in this particular video we will going to discuss about the integration of Rajasthan, and this video is beneficial for the ones who are preparing for the RPSC first grade exam or any competitive exams related to Rajasthan. And in this video we will going to discuss about the integration of Rajasthan. So we will first read a little background about the integration of Rajasthan and which are the territories, Thikanas and Central Rule Territory in Rajasthan, and which state is the first to sign merger with India and the last one, and how many phases in integration of Rajasthan is divided into, and who are the Raj Pramukh and capitals of particular states and during integration of Rajasthan, and so on. So let's begin. Without wasting time, we will going to discuss about the basics of integration of Rajasthan. So first, India before integration of Rajasthan is divided into three categories. First is A, B and C. There are three kind of categories in which Rajasthan is divided, which is A category state, which is directly ruled by British, in which governance vested to governor. जो गवर्नेंस है, जो पावर्स है, वो किसके पास है? गवर्नर के पास. And second, B state category is ruled by Raj Pramukh, and the C category is ruled by Chief Commissioner State. So on the 4th June 1947, मतलब 4 June 1947 तक राजस्थान के अंदर 19 रियासत, 3 ठिकाने एंड 1 सेंट्रल रूल टेरिटरी थी, जिसमें 19 रियासत वी विल गोइंग टू डिस्कस फर्दर, एंड द 3 ठिकानास विच वर ड्यूरिंग द इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान इज नीमराना, लावा एंड कुशलगढ़. Neemrana is in Alwar, Lava is in Tonk, and Kushalgarh is in Banswara. And one central rule territory was Ajmer मेरवाड़ा. और जो मेवाड़ थी वो सबसे पुरानी रियासत थी, और जो झालावाड़ थी वो लेटेस्ट रियासत थी जो किसने 1838 में ब्रिटिश ने बनाई थी. सबसे बड़ी रियासत अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इज सीन, then it will be Jaipur. Then the geographical most expensive, मतलब जोग्राफी के अकॉर्डिंग हम लोग अगर देखें तो that will be मारवाड़, which means जोधपुर. एंड सबसे छोटी एरिया और पॉपुलेशन के वाइज देखें तो शाहपुरा. और ये शाहपुरा जो थी वो एक ओनली ऐसी रियासत थी जो जहाँ पे जो है कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेटअप की थी. और जो जाट रियासत थी वो थी भरतपुर एंड धौलपुर. मुस्लिम रियासत टोंक. 16 रियासत बिलोंग टू राजपूत. Then Bikaner रियासत अंडर किंगशिप ऑफ शार्दुल सिंह was the first to sign merger paper in India on the 4th August 1947. एंड जो धौलपुर रियासत थी वो सबसे आखिरी रियासत थी जिन्होंने मर्जर साइन किया था राजस्थान के साथ on the 14th August 1947 अंडर उदयभान सिंह. और जो राजस्थान का इंटीग्रेशन हुआ था वो 7 फेजेस में हुआ था, और इसको बनने में, इंटीग्रेट होने में 8 साल 7 महीने और 14 दिन लगे थे. और ये स्टार्ट हुआ था 18 मार्च 1948 से और ख़त्म हुआ था 1 नवंबर 1956 तक. सो नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट 7 phases and integration of Rajasthan and how does it take place. So first phase is Matsya Union, which was started from 17th March 1948. एंड जो नेम, जो मत्स्य जो यूनियन है, वो जो नेम है वो सजेस्ट किया था KM मुंशी ने. और इसकी कैपिटल हमारी रखी गई थी अलवर, जिसको इनोग्रेटेड बाय, किसने इनोग्रेट किया था? नरहरि विष्णु गदगिल ने. और यहाँ पे नंबर ऑफ मर्जिंग रियासत एंड ठिकानास आर 4 रियासत, 1 ठिकाना था जो नेम्स है पर्टिकुलरली अलवर, भरतपुर, धौलपुर एंड करौली. सो बेसिकली यू जस्ट नीड टू लर्न द मेन थिंग
the main two things in this phases. First one is in which phase and what is the name and names of the Riyasats and Raj Pramukh, which is Raj Pramukh is Uday Bhan and Prime Minister is Shobharam Kumawat. And in the second phase, it was Rajasthan Union, which was integrated in 25th March 1948, and the capital was Kota. N.V. Gadgil was inaugurated by N.V. Gadgil, जहाँ पे 9 रियासत एक ठिकाना था, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कुशलगढ़. सो एंड यहाँ पे जो राज प्रमुख थे वो भीम सिंह थे और जो प्राइम मिनिस्टर थे वो गोकुललाल असावा थे. थर्ड इज़ यूनाइटेड राजस्थान, 18 अप्रैल 1948, जिसकी कैपिटल हमारी उदयपुर रखी गई थी और इसको इनोग्रेट किया जवाहरलाल नेहरू ने. यहाँ पे 10 रियासत एक ठिकाना थी. यहाँ पे जो राजस्थान यूनियन है वो और मेवाड़ रियासत मर्ज की थी. और यहाँ पे जो राज प्रमुख थे वो भूपाल सिंह थे और प्राइम मिनिस्टर माणिक्यलाल वर्मा थे. And the fourth one, the most important phase, which is Greater Rajasthan, 30th March 1949, and on this day we celebrate Rajasthan Day. We celebrate it as a Rajasthan Day, and the capital was made Jaipur, which was inaugurated by सरदार वल्लभ भाई पटेल. यहाँ पे रियासत 14 हो गई थी और ठिकाने 2 हो गए थे. एंड यूनाइटेड राजस्थान प्लस जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर एंड लावा वाज मर्ज्ड. सो बेसिकली यहाँ पे 2 पोस्ट नहीं, यहाँ पे 3 पोस्ट बनाई गई थी. फर्स्ट इज़ ऑफ महाराज प्रमुख जो कि भूपाल सिंह थे, फिर राज प्रमुख जो कि मान सिंह 2 थे जो जयपुर के राजा थे बेसिकली, और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बनाए गए थे हीरालाल शास्त्री को. देन फिफ्थ फेज इज़ यूनाइटेड स्टेट ग्रेटर राजस्थान, दैट इज़ ऑन 15 मई 1949, और इसकी कैपिटल हमारी जयपुर को रखी थी. यहाँ पे 18 रियासत 3 ठिकाने हो गए थे, जिसमें ग्रेटर राजस्थान प्लस मत्स्य यूनियन, जो कि किसने सजेस्ट की थी, डॉक्टर शंकर देव कमेटी ने. यहाँ की जो राज प्रमुख थे वो मान सिंह 2 हैं. एंड यहाँ पे महाराज प्रमुख की पोस्ट हटा दी गई थी और जो प्राइम मिनिस्टर थे उसकी पोस्ट चेंज कर दी गई थी एज अ सीएम, चीफ मिनिस्टर की जो बने थे. पहले जो चीफ मिनिस्टर बने थे वो थे हीरालाल शास्त्री. नाउ यूनाइटेड राजस्थान 26 जनवरी 1950, कैपिटल एस सीन जयपुर, रियासत 19, ठिकाने 3, यूनाइटेड लार्जर राजस्थान प्लस यहाँ पे एड ऑन किया गया था सिरोही को. यहाँ के राज प्रमुख मान सिंह 2 और सीएम हीरालाल शास्त्री. एंड द लास्ट वन फेज ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान और द राजस्थान वी सी टुडे इज इन द 7th फेज राजस्थान 1 नवंबर 1956. और यहाँ पे जो जयपुर कैपिटल थी, कैपिटल जयपुर को रखा गया था और रियासत यहाँ पे थी 19, 3 ठिकाने और सेंट्रल ड्यूटी जो कि तो हमारी कौन सी थी, अजमेर और मेरवाड़ा. यहाँ पे राजस्थान, यूनाइटेड राजस्थान को ऐड किया था. यहाँ पे आबू और दिलवाड़ा भी ऐड किया गया था और अजमेर, मेरवाड़ा और सिरोही, दीज ऑल आर एडेड. और यहाँ के जो फर्स्ट, यहाँ पे राज प्रमुख की पोस्ट हटाकर गवर्नर की पोस्ट लाई गई थी, जिसमें जो फर्स्ट गवर्नर बने थे वो हमारे गुरुमुख निहाल थे और जो चीफ मिनिस्टर थे वो मोहनलाल सुखाड़िया थे. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग वी नीड टू नोट इज़ ऑन द 7th फरवरी 1950 आबू, दिलवाड़ा एंड सिरोही जो थे वो मर्ज किए गए थे ऑन द 7th फरवरी 1950. और इससे पहले ये ऐड नहीं हुए थे, मतलब ये जो 6th फेज़ था उसमें ये जाके ऐड हुए थे. 6th फेज़ के बाद में ये ऐड हुए थे. सिरोही जो था वो 6th फेज़ में ऐड हो गया था और जो 7th फेज़ में आबू और दिलवाड़ा जो था वो हमारे राजस्थान में ऐड किया गया था. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान and the Raj Pramukh. I hope this video will going to help you in your
exam preparations. And thank you for watching. And if you do like my video, then please do like and share and subscribe to my channel. Thank you.